يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصقور ميدان أرضه وصلي وسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلسلہ گفتگو ہے اصحاب اور محبان محمد و آل محمد کا تذکرہ، کہ خطبہ اول میں مختصر طور پر ہم ان عظیم شخصیتوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کے سائے میں صراط مستقیم پر چلنا شروع کیا، ثابت قدم رہے اور دنیا والوں کے لیے اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو اسوہ بنایا اور رول ماڈل بنایا۔ آج کے خطبے میں ہم کوشش کریں گے، صحابی بھی ہیں اور فرزند امام بھی ہیں جن کا تذکرہ عام طور پر ہم مصائب میں کربلا کی مصیبتوں کے وقت کرتے ہیں، لیکن اس عظیم پرسنالٹی کو، عظیم شخصیت کا تذکرہ اور ان کی پرسنالٹی کو دہرانا ہمارے لیے مفید ہے، خصوصی طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے جو دین مبین اسلام کو مانتے ہیں، اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی اور شخصیت نہیں ہے، ماہ شعبان میں 11 شعبان کو پیدا ہونے والی شخصیت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ جس شخصیت کے نام سے اسی دن، آپ کی ولادت کے دن، ایران میں نوجوانوں کے دن کے نام سے مخصوص کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کو اہمیت دی جائے، نوجوانوں کو بیدار کیا جائے، نوجوانوں کو دین کی طرف، مکتب کی طرف بلایا جائے، اس عظیم پرسنالٹی کے کردار اور آپ کی شخصیت کے سائے میں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو اپنی شبیہ قرار دیا ہے، اپنی مثال قرار دیا کہ یہ لوگ مجھ جیسے لگتے ہیں، خلقاً اور خلقاً، پیدائشی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ ان میں سے ایک حضرت زہرا ہیں جن کے پیغمبر اسلام نے فرمایا زہرا کی شخصیت، پرسنالٹی میری طرح ہے، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میری طرح ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جعفر طیار کی شخصیت، آپ کا جسم اور آپ کا اخلاق میری طرح، میرے جسم کی طرح، میرا اخلاق کی طرح ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت تشبیہ جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے،
पैगंबर इस्लाम की तरफ से या खुसूसी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जब आपने अपने इस फर्जंद को मैदान जहाद की तरफ रवाना किया तो आपने अपने हाथों को बुलंद किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम फ़क़द बरदा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न। इमाम फरमाते, परवरदिगार तो गवाह रहना कि इस कौम की तरफ मैं उस फर्जंद को भेज रहा हूँ, उस बेटे को भेज रहा हूँ जो तेरे रसूल की शबीह है, खिलकत के एतबार से, पैदाइश के एतबार से, अखलाकी एतबार से और चाल और चलन के एतबार से बे रसूल का मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। आपकी शख्सियत के लिए, हज़रत अली अकबर की पर्सनालिटी के लिए शायद ये जुमला जो इमाम ने फरमाया आखिर में ये बहुत माना रखता है। एक नौजवान के बारे में इमाम इस तरह इरशाद फरमा रहे हैं कि कितना एतबार है इस शख्सियत पर और कितना आबरूमंद है ये पर्सनालिटी। इमाम फरमाते हैं, कुन्ना इज़स्तक़ना इला वजह रसूल का नदरना इला वजह। इसमें फ़दाइल भी हैं और मसाइब भी हैं और आपकी पर्सनालिटी को भी बयान किया जा रहा है। पैगम्बर मौला फरमाते, यार परवरदिगार, जब भी हम आखिरी नबी की ज़ियारत के मुश्ताक होते, आखिरी नबी की ज़ियारत करना चाहते, तो हम इस नौजवान को देख लिया करते थे। गोया इसका चेहरा हमें नबी की याद दिला देता था, इसकी गुफ्तगू, इसका किरदार, इसका जिस्म, इसकी चाल और चलन हमें नबी की याद दिला देती है। तो ये इस तरह शबाहत को पैगम्बर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान किया था कि रिलेट किया है आपकी पर्सनालिटी को पैगम्बर इस्लाम की शख्सियत और पर्सनालिटी से। ये आसान काम नहीं है इस तरह की तशबीह देना, वो भी पैगम्बर इस्लाम से जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये कायनात के लिए उस्वा हसना, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका अखलाक इतनी बुलंदी पर है कि परवरदिगार आलम ने आपको खुल्क़ अजीम से याद किया है कि सबसे बड़ा अखलाक कायनात में जो अखलाक की बुलंदी पर फाइज है वो पैगम्बर इस्लाम है। जब आप रिवायतों में जाएंगे आपकी शबीह होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मैसेज हम लेंगे इंशाअल्लाह मौला हज़रत अली अकबर की ज़िंदगी से कि क्या हम रसूल के शबीह बन सकते हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी को रसूल की ज़िंदगी की तरह बना सकते हैं। खुद रसूल से सवाल करें, या रसूल अल्लाह, क्या कोई आपके जैसा हो सकता है, आपके शबीह बन सकता है, अपनी ज़िंदगी को सजा सकता है, संवार सकता है। हदीस है, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जी मेरी तरह तुम बन सकते हो, मेरे रास्ते पर चल सकते हो, तुम भी मुझसे करीब कर सकते हो अपने आप को, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी दूसरों के लिए उसवा हसना बने। तुम मुझे रोल मॉडल बनाओ और खुद एक रोल मॉडल बनो दूसरों के लिए, ताकि दूसरे तुम्हें देखकर अपनी जिंदगी को बनाते और सजाते चले जाएं। या रसूल अल्लाह, किस तरह हम अपने आप को आपसे करीब कर सकते हैं। पैगंबर इस्लाम ने 4 सिफतों को बताया है, उन 4 सिफात में के साए में हम अपने आप को पैगंबर इस्लाम के करीब कर सकते हैं। पहली सिफत, अहसनुकुम खुल्क़ा, तुम में से जो इंसान बा अखलाक होगा, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, जिसके मैनर्स अच्छे होंगे, जिसका अखलाक अच्छा होता है, वो दर हकीकत पैगंबर इस्लाम से करीब होता है। बा अखलाक पैगंबर इस्लाम से करीब होने के लिए इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छे मैनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अखलाक हमारे दीन का उसूल है। अगरचे दीन को अगर तौज़ील मसाइल आप उठाकर देखेंगे, हमारे मराज करम ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कुछ अकायद हैं, कुछ अहकाम हैं और कुछ अखलाकियात हैं, लेकिन बाद में वहीं पर उलमाए कराम ने कहा है सारा दीन इन्हीं अखलाक पर आकर टिक जाता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और खुम्स, ये भी अखलाकियात के साए में आ जाते हैं और सारे अहकाम अखलाकियात के साए में आते हैं। अहकाम में अखलाक ना हो, अहकाम में अच्छा किरदार ना हो, बिहेवियर हमारा अच्छा ना हो, ना हमारी नमाज कबूल होती है, ना हमारा रोज़ा कबूल होता है और ना अकीदे के एतबार से हम बुलंदी की तरफ जा सकते हैं। अखलाक हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे दीन का फाउंडेशन है। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अगरचे नमाज के बारे में क़यामत में पहला सवाल होगा, लेकिन पहली चीज जो इंसान की जिंदगी से मीज़ान में रखी जाएगी वो इंसान का अखलाक है। अगर वो अखलाक और उसका बिहेवियर, उसके मैनर्स
اچھے ہوں تو ساری عبادتیں انسان سے قبول کی جائیں گی. اور اسی اخلاق کے سائے میں ہم مولا علی اکبر کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کتنا با اخلاق تھا یہ انسان, کتنا کنیکشن تھا آپ کا رسول کے گھرانے سے, انسان تعجب کرتا ہے. ایسا مضبوط رشتہ اور رابطہ تھا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے, لوگوں سے حضرت علی اکبر کا. لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے تھے, آپ کے گھر والے آپ کی عزت کرتے تھے, صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے. ایک لمحے کے لیے بھی حضرت زینب و حضرت ام کلثوم اور دوسرے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے. جہاں مصائب ہم بیان کرتے ہیں, جب حضرت علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خواتین اور بچے حضرت علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے. حلقے میں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے, حلقے میں لے کر یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ہمارا رابطہ, اس طرح ہمارا کنیکشن اخلاق والا رابطہ اور اخلاق والا کنیکشن ہے. آپ سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی, آپ سے دوری انسان تحمل نہیں کر سکتا تھا. یہ اخلاق آپ کا, اور اسی طرح ہم اسی کو اخلاق میں شاید اس کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں مولا علی اکبر کے کردار میں اور مینرز میں, کہ آپ امام کے بیٹے ہیں, آپ امام کے فرزند ہیں, اس کے باوجود آپ ہمیشہ امام کے ساتھ رہے اور امام کے تابع رہے. ایک جملہ حضرت علی اکبر کا, بڑی شخصیت ہونے کے باوجود, بڑی پرسنالٹی ہونے کے باوجود, حتیٰ دشمن کہتا ہے معاویہ جب اپنے چاہنے والوں سے سوال کرتا ہے کہ اگر آج کسی کو خلافت دی جائے کس کو دی جائے, خلافت کا حق, خلیفہ بننے کا حقدار کون ہے, کس کے اندر ایبیلٹی ہے, اماموں کو چھوڑ کر جو امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو یہ سوال کرتا بتاؤ ان کے علاوہ کس کو ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, دربار میں بیٹھنے والے, پیسے لینے والے, چاپلوسی کرنے والے, دسترخوان پر بیٹھنے والے تو یہی کہیں گے کہ آپ ہی تو ہیں سرکار, آپ کے علاوہ کون خلیفہ بن سکتا ہے. خود دشمن کہتا ہے تم غلط کہتے ہو, اگر امام حسن اور امام حسین کے علاوہ اگر کوئی روئے زمین پر خلیفہ بننے کا حقدار ہے تو حضرت علی اکبر ہے. اس کا چہرہ دیکھو, اس کا اخلاق دیکھو, اس کے چہرے پر روب دیکھو, یہ خلقت بتا رہی ہے یہ انسان بڑا بننے کے لیے پیدا ہوا ہے, یہ انسان لیڈر بننے کے لیے پیدا ہوا. اتنا اخلاق ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ تابع رہے, تابع امام وقت. جو امام نے کہا اسی پر آپ نے عمل کیا اور پیروی کی, اور امام کی باتوں کو کبھی آپ نے ٹالا نہیں ہے. پہلی صفت, انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے, پیغمبر اسلام سے قریب ہوگا. اعظمکم حلما, پیغمبر اسلام فرمایا اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو, تمہارے اندر اخلاق میں جو سب سے اہم ترین صفت ہے وہ صبر کا ہونا ہے, وہ حلم کا ہونا ہے, وہ پیشنس کا ہونا ہے. سارے جھگڑے ایک لمحے کے لیے صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے, ساری پریشانیاں صبر سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں. لیکن مولا رسول اسلام اخلاقی اعتبار سے شباہت کے لیے جو اصول بتا رہے ہیں وہ یہ کہ آدمکم حلما, جتنی انسان کی شخصیت چھوٹی ہوتی ہے وہ جلدی بھر جاتی ہے, جو بھر جاتا ہے وہ چلاتا ہے. اگر ظرف کو بڑا کر دیں, کہا جاتا ہے نا برتن جتنا چھوٹا ہوگا جلدی گرم ہو جاتا ہے اور جلدی بھر بھی جاتا ہے. جتنے پرسنالٹی انسان کا, ظرف انسان کا جتنا بڑا ہوگا دیر سے گرم ہوگا اور دیر سے بھرے گا. یہ حلم کا معنی کیا ہے علماء کرام نے. اپنے ظرف کو بڑھائیں, اپنے دل کو وسیع کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں, ساری چیزوں کو اس کے اندر ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. انسان اپنے آپ کو غصے سے اور انسان اپنے آپ کو آپے سے باہر ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صبر کے دائرے میں چلا آتا. اعظمکم حلما, کتنا خوبصورت غصہ دلانے کے کام ہوتے ہیں. کربلا کے میدان میں دو شخصیتوں کے سامنے امان نامے پیش کیے گئے, ایک حضرت ابو الفضل عباس اور دوسرے حضرت علی اکبر. چونکہ ماں کی طرف سے آپ کا رشتہ ان لوگوں سے تھا جو یزید کے لشکر میں آئے تھے, اور حضرت ابو الفضل عباس کی ماں کی طرف سے بھی رشتہ ان لوگوں سے تھا جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے امان نامہ بھیجا ہے. حقیقت امان نامہ ان کو یاد دلانا, رشتہ یاد دلانا ہے اور ان کو غصہ دلانا ہے. تو یہ ہمارے رشتہ دار ہمارے مقابل میں آئے ہیں, ہم ان کے رشتہ دار ہیں. امان نامہ رشتہ داری یاد دلانا اور غصہ دلانا ہے. دونوں نے امان نامے کو ٹھکرا کر بتایا کہ ہم اگر ہماری زندگی میں کوئی سب سے بڑا رشتہ ہے تو وہ حسین ابن علی کا رشتہ ہے. ہماری زندگی میں سب سے عظیم اگر کوئی رشتہ داری ہے تو وہ محمد و آل محمد سے رشتہ داری ہے. دونوں نے سب سے پہلے
जिस अमान नामे पर लानत भेजी है वो अबुल फजल अब्बास और अली मौला अली अकबर है। दोनों ने कहा तुम्हारे अमान नामे पर लानत हो, हम बस में हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन्होंने अपने आप को बताया दश्ते करबला में। और तीसरी सिफत वो अबर्रकुम बेक़राबते, तुम में से बेहतरीन इंसान, शबीह तरीन इंसान पैगंबर इस्लाम से वो है जो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने करीबियों से नेक रफ्तार अख्तियार करे, उनकी मदद करे, उनकी सपोर्ट करे, उनकी हेल्प करे। अगर कोई शख्स याद आए मुसीबत में, कोई और नहीं, मैं याद आऊं या आप याद आए। अगर रिश्तेदारों में परेशानी हो, पहला नाम जिसका जहन में आए वो इंसान बेहतरीन इंसान कहलाता है। इसके पास जाएंगे तो हमारी मुश्किल हल हो जाएगी, इसके पास जाएंगे तो ये हमारी मदद जरूर करेगा। सहन में नाम आ जाना ही उस इंसान के मोमिन होने की निशानी है। कितना खूबसूरत जुमला कहा है किसी आलिम दीन ने, हजरत हबीब इब्ने मदाहिर का मकाम कितना बुलंद है, बाद में हम बहस करेंगे इमाम ने क्या खत लिखा, आप किस तरह करबला के मैदान में आए। लेकिन जब ज़ैनब ने सवाल किया क्या हमारा कोई नहीं है जो नाम इमाम के जहन में हबीब का आया है, वो हबीब की पर्सनालिटी के लिए काफी है कि इमाम को याद आया वो नाम जो बचपन का साथी रहा, जो आपका सहाबी रहा है। वो नाम याद आना दर हकीकत बहुत माना रखता है। अगर आप मौला अली अकबर की जिंदगी का मुताला करेंगे, 15 साल के सिन में आप मेहमान नवाज थे, ना तो ना रिश्तेदारों में आप मशहूर थे, मारूफ थे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे। मदीने में आप मशहूर हो चुके थे चैरिटी के एतबार से, जेनरसिटी के एतबार से। 15 साल के सिन में आपने अपने घर में एक कमरा बनाया था ताकि वो कमरा मेहमानों के लिए हो। कोई आए बाहर मदीने से, वो आवारा ना हो, वो दरबदर ना भटके, उसे पता चल जाए कि यहाँ पर मेहमानों के आराम करने की एक जगह है। आज जो मुसाफिर खाने बनाए जाते हैं, मेहमान सरा बनाए जाते हैं, ये सीरत हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इतना ही नहीं कि मेहमानों के लिए कमरा बनाया, जगह बनाई। ये नौजवान बच्चा है, अभी 15 साल का सीन है, देखिएगा हमारे नौजवान इस बात की तरफ तवज्जो करें। ना तो ना इन्होंने कमरा मुशक्कस किया, बल्कि अपने घर की छत पर जब तारीकी हो जाती, अंधेरा छा जाता, एक चराग जला देते आप घर की छत पर, ताकि दूर से आने वालों को पता चल जाए कि अली अकबर का घर कहां पर, अली अकबर का हुजरा वो कहां पर है, जहां पर वो जाकर पहुंचकर आराम कर सकते हो, अपने थकावट को दूर कर सकते हो और उनके लिए गजा का आप एहतमाम करते थे। अबर्रकुम बेक़राबते, जो नेक रफ्तार होंगे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो पैगंबर इस्लाम के करीब होंगे। और चौथी सिफत पैगंबर इस्लाम खुद फरमाते हैं अशद्दुकुम बिनफ्सिही इंसाफन। कौन पैगंबर इस्लाम के करीब हो सकता है या शबी हो सकता है? जो सबसे बड़ा मुनसिफ बनेगा, जो इंसाफ को इख्तियार करता है, आदिल बनता है, किसी पर जुल्म नहीं करता, अपने आप पर या किसी रिश्तेदार पर या किसी कम्युनिटी के मेंबर पर जो जुल्म नहीं करता, अदालत से बरखुद करता है, अदालत को इख्तियार करता है, वो इंसान शबीह रसूल बनेगा। इंसाफ बहुत बड़ा मरहला है। एक जुल्म इंसान के सारे आमाल को तबाह कर देता है। इंसान जितना मुनसिफ बनता जाएगा उतना ही इंसान ईमान से करीब होगा और इंसानियत से करीब होगा। इंसाफ के लिए कोई उसूल है? ये तो बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि इंसान आदिल बने, मुनसिफ बने, किसी का माल ना ले, किसी पर जुल्म ना करे, किसी को गाली ना दे। कई बहुत बड़ा मौजू है कि सोशल जस्टिस पे इंसान गुफ्तगू करे, समाजी अदालत पर इंसान गुफ्तगू करे। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने एक उसूल बताया, खुद आपने, कि मुनसिफ किसे कहते हैं, एक जस्ट इंसान कौन होता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते उसूल ये है मा करहतहु लिनफ्सिका फकरह लिगैरिक, जो चीजें तुझे पसंद नहीं है वो चीजें तो दूसरों के लिए भी पसंद न कर। वमा अहबबतहु लिनफ्सिका फअहबिबहु लिअखीक, जो चीजें तू अपने लिए पसंद करता है वही चीजें तो दूसरों के लिए भी पसंद करना शुरू कर दे। तकुन आदिलन फी हुक्मिक, जब भी कजावत करना, स्टेटमेंट देना, वर्डिक देना, तो तुम अदालत को इख्तियार करो। मुक़सितिन फी अदले का मुहिब्बन फी अहली समा, अगर तुम आदिल बन जाओगे, मुनसिफ बनोगे, याद रखो आसमान वाले तुम्हें चाहने लगेंगे। वो मौदूदुन फी सुदूर अहलिल अर्द, जमीन वाले तुम्हें पसंद करेंगे। मेरी ख्वाहिश है सारी दुनिया मुझे पसंद करे, जमीन वाले पसंद करे, आसमान वाले।
पैगम्बर इस्लाम ने नुस्खा बताया, अच्छे बनो, अखलाक अच्छा बनाओ, आदिल बनाओ, आसमान वाले भी तुम्हें पसंद करेंगे, जमीन वाले भी तुम्हें पसंद करेंगे, उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी। 1400 साल के बाद हम यहाँ बैठकर इस मस्जिद में उस नौजवान को याद कर रहे हैं जिस नौजवान ने अखलाक के साए में जिंदगी गुजारी, जिस नौजवान ने खूबसूरत किरदार के साए में जिंदगी गुजारी है। और यही जिंदगी इंसान की पहचान है और इंसान को कामयाब बनाने वाली है। हमारे नौजवानों के लिए, मेरे लिए जो सबक हम इस नौजवान से ले सकते हैं वो ये कि अपने घर वालों में एक नाम पैदा करें, एक पिल्लर बने अपने घर का। अगर जवानी हमारे पास है, वो जवानी को हम खर्च करें अपने रिश्तेदारों के दरमियान और अपनी कम्युनिटी के दरमियान, ताकि लोग हम पर भरोसा कर सकें, हम पर एतबार कर सकें। और दूसरी जो चीज़ मशहूर है वो आपकी अजान है। जब भी हम गुफ्तगू करते हैं हजरत हुर के बारे में, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं करबला की नमाज के बारे में, कोई हजरत अली अकबर की अजान को भूलता नहीं है। हसास मौके पर आपने अजान देकर बताया कि दीन की दावत देने में हया और शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अजान एक नमूना है, अजान एक मिसाल है। अजान है क्या चीज? अजान यानी लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, अच्छाइयों की तरफ बुलाना है। तो अगर एक नौजवान लोगों को नेकियों की तरफ बुलाने लगे, अच्छाइयों की तरफ बुलाने लगे, ना तो ना खुद वो खूबसूरत जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाता है, बल्कि उसके रास्ते पर चलने वाले हजारों लोग लब्बैक कहते हुए चलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि इस नौजवान की जिंदगी का मुताला करें, इस नौजवान की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए उसवा हसना और रोल मॉडल बनाएं। यकीन मानिए कि हमारी जिंदगी खूबसूरत होगी। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफिरिद ज़ंबि व क़ाबिलित तौब व हुवल गफूरुर रहीम, सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बा व बसतल यदैनि बिर्रहमा। खुतबे दुव्वम की इब्तिदा में एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हजरात को तक़वाए इलाही की दावत देता हूँ। तमाम ईदें जो गुज़र चुकी हैं, जो आने वाली हैं, उन सब की मुबारकबादी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि इन अजीम ईदों से, अजीम शख्सियतों से अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन सबक और बेहतरीन दर्स हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। गुज़श्ता हफ्ता, गुज़श्ता दिनों में आलमी तौर पर आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया, वुमेंस डे मनाया गया 8 मार्च को, और बाज़ इलाक़ों में प्रोटेस्ट हुए, जुलूस निकले, बाज़ लोगों ने शआर बुलंद किया कि हमें हक़ चाहिए। होता क्या है कि आज की दुनिया में जब किसी एक दिन को किसी एक ग्रोह के लिए, एक ग्रुप के लिए, एक तबक़े के लिए मुअय्यन किया जाता है, उसी ग्रुप के लोग, उसी तबक़े के लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं और अपने हाथों में कोई बैनर्स लिए हुए, कोई प्ले कार्ड्स लिए हुए अपना मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। आजकल अगर आपने देखा होगा या फॉलो किया होगा तो कर सकते हैं, कुछ प्ले कार्ड्स पर ऐसे लिखे जाते हैं शआर जो दर हकीकत वो आलमी औरतों के हुकूक के बारे में नहीं होते, बल्कि मर्द अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाने के लिए उनको इस रास्ते पे खड़ा कर देता है कि वो आज़ाद हों, वो फ्री हों, किसी कैदो बंद में ना हो। ये शार आपको नज़र आएंगे, मेरी ज़बान से शार निकल रहे हैं, लेकिन इन शार की मैं तायद नहीं करता हूँ। कभी कभी प्ले कार्ड्स में लिखा होता है इन्हीं दिन में
वुमेन्स डे में मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कोई मेरी जिस्म पर पाबंदी नहीं लगा सकता, रुकावट नहीं डाल सकता। या दूसरा, इसी साल मैंने देखा कि मैं रोटी क्यों बनाऊं, एक नारा, एक स्लोगन है कि मैं रोटी क्यों बनाऊं, हाथ में लिए एक औरत बाहर खड़ी हुई है, उसके हाथ में लिख कर दे दिया गया है। उसके बाद ये लिखा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत स्लोगन है, लेकिन हंसी भी आती है, खूबसूरत का मतलब हंसी आती है इसको पढ़ने के बाद। वो ये कि दुपट्टा अच्छा है तो अपनी आंखों पर बांध लो, मैं क्यों अपने सर पे डालूं मसला। और इसी तरह से कई स्लोगन्स आपको मिलेंगे जो लेकर औरतें सड़ी एक आधा दिन 2 घंटे 4 घंटे सड़क पर खड़ी रहेंगी, और कोई फिल्म बना लेगा, सोशल मीडिया पे डाल देगा, और समझते हैं कि ये हक हमने अदा कर दिया, इन औरतों का हक हमने अदा कर दिया। या औरतें ये समझती हैं कि हमें सारे हुकूक मिल गए हैं, क्योंकि सड़क पर आ गए तो हुकूक भी मिल गए, लेकिन उनको नहीं मालूम है हुकूक इस तरह मिलते नहीं है। हुकूक के लिए शार नहीं, स्लोगन नहीं, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिकली तौर पर हुकूक के डिमांड होते हैं, और हुकूमती लेवल पर उनके हुकूक पर डिस्कशन होनी चाहिए। हकीकत यकीन मानिए कि औरतों पर जुल्म होता रहा है और हो रहा है, और तारीख में औरतों को पर जुल्म किया भी गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे मुआशरे के, हमारे सोसाइटी के खवातीन के लिए, औरतों के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? 2-3 पॉइंट्स में हैं जो कि काउंसलिंग करता हूँ, माँ बहनों से बातें हमारी होती हैं, तो मैं उनको समराइज करने की कोशिश करूंगा आपकी खिदमत में। इंशाल्लाह उनके हुकूक के बारे में भी आइंदा आने वाले जुमा में बात करेंगे कि हमारे मर्दों के साथ उनका बर्ताव कैसा है, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन 3 पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी मैं इशारा कर दूं। हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हम औरतों के कामों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। अक्सर मर्द ये है कि वो ये समझते हैं औरत जो घर में काम करती है वो काम उनका काम नहीं होता है। वो समझता, बाहर से आने के बाद कहता मैं मेहनत करके आया हूं, तुम घर में बैठी रही हो। वो घर में बैठी रहने का मतलब, घर में रहने का मतलब, घर में काम करने का मतलब बेकारी नहीं है। घर में काम करने का मतलब लेजीनेस नहीं है। अगर एक रात, अगर कोई एक दिन, अगर कोई इंसान बीवी बनकर देखे, दिखाए अपने आप को, पता चलेगा कि कितनी बड़ी सख्त जिम्मेदारी होती। उनके काम को कम से कम हम रिकॉग्नाइज करें कि ये काम भी है, चाहे वो जॉब करती हो, बिजनेस करती हो या घर में काम करती हो, उनके काम को रिकॉग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें और उन्हें सपोर्ट करें इस मरहले में, ताकि वो आगे बढ़ सके। जो दूसरी चीज है, जरूरी चीज है, वो ये कि हम उनकी शख्सियत का एहतराम करें, पर्सनालिटी की हम रिस्पेक्ट करें। वो हमारे हाफ ऑफ द लाइफ है, नहीं, वो हमारी कम्युनिटी का आधा हिस्सा है, हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा है। जिस तरह हम अपने आप की इज्जत करते हैं, अपने घर वालों की इज्जत करते हैं, वो हमारे पार्ट ऑफ द फैमिली है, पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, कम्युनिटी है। उसको रेस्पेक्ट की जरूरत है, एहतराम की जरूरत है। मोहब्बत खुद ब खुद चली आएगी एहतराम के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। पर्सनालिटी की रेस्पेक्ट ना करना, गालम गलोच, अब्यूजिंग, टॉर्चरिंग, बीटिंग, पता नहीं क्या क्या होता है। जब इंसान कहता मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 जुमले कहे, एक जुमला इंसान को जिंदगी से थका देता है। मेरे अजीजों गौर कीजिएगा इस स्टेटमेंट की तरफ। एक जुमला, एक गाली इंसान को जिंदगी से बेजार बना देती है। इंसान कोशिश करे अपनी जबान को कंट्रोल करे। मर्द हजरात खुसूसी तौर पर उन शख्सियतों को, औरतों की पर्सनालिटी को अहमियत दें, रेस्पेक्ट करें। उनकी जितनी रेस्पेक्ट देते चले जाएंगे उतना आपका घर अच्छा होता चला जाएगा, और उसी के साथ साथ आपका मुआशरा अच्छा होता चला जाएगा। और जो तीसरी जिम्मेदारी है वो औरतों के हुकूक की जिम्मेदारी है। लंबी फहरिस्त है जो हम हुकूक अदा नहीं करते हैं। माजरत के साथ ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, दूसरी शादी के नाम पर, टेम्पररी मैरिज के नाम पर हम अपने घर वाली के हुकूक को जाया नहीं कर सकते। दीन के उसूलों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और किसी और के हक को पामाल कर दें, और फिर समझते हैं मैं तो दीन पर अमल कर रहा हूं, मुझे शरीयत ने इजाजत दी है। शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन शरीयत की इजाजत घर से शुरू होती है, घर के बाहर से शुरू नहीं होती है। अपने घर को बचाने के लिए मेरे अजीजों गौर कीजिएगा इस जुमले की तरफ, हमें कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ते हैं। अपने ख्वाहिशात को, अपने शहवत को, अपने डिजायर्स को, अपने लस्ट को, अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल भी करना पड़ता है। आसान काम नहीं है। ये राइट्स हैं जो औरत डिमांड कर रही है आज।
آج ڈیمانڈ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے ہسبینڈ کے پاس کہ وہ مجھے دے، میرے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے ماں کے لیے وہ دے، اپنے بھائی کے پاس ٹائم نہیں اپنے بہن کے لیے وہ دے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا وقت بھی نہ ہو کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بتا سکیں، وہ دولت کما کر کیا کریں گے جس کے نتیجے میں رشتہ دار دور ہو جائیں؟ وہ پیسہ لے کر کیا کریں گے جس کے نتیجے میں گھر ٹوٹ جائے؟ ان کے رائٹس کی طرف خیال کریں۔ وہ رائٹس شروع ہوتے ہیں اپنے گھر سے، اور اس حجرے سے، اس روم سے، اس کمرے سے نہیں، اس بیڈ روم سے رائٹ شروع ہوتے ہیں جہاں پر ہم زندگی سکون کی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کے رائٹس کی طرف توجہ کریں کہ ایسا نہ ہو صرف نعرہ دیں، سلوگن دیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں، ان کو حق نہ ملے تو یقین مانیے فیملی لائف خصوصی طور پر یا سوشل لائف جس کے ہم بہت ہی معتقد ہیں، مانتے ہیں، وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ جس دن فیملی لائف یا فیملی سٹرکچر ٹوٹنے لگے گا یا سوشل لائف میں دراڑیں آنے لگیں گی، دیواریں کھڑی ہونے لگیں گی، یقین مانیے اس دن سے پھر کمیونٹی اور سوسائٹیاں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے خصوصی طور پر، اللہ نے مرد کا دل بڑا بنایا ہے، وہ سیکریفائس کر سکتا ہے، وہ خدمتیں کر سکتا ہے، وہ حقوق دے سکتا ہے، وہ رائٹس کو دے سکتا ہے، اسی لیے تو اسے قوام بنایا۔ وہ کیئر کر سکتا ہے، ٹیک کیئر کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایبیلٹی دی ہے، اس ایبیلٹی اور اس پوٹینشل کا پوری طور پر استعمال کریں، اچھے طور پر استعمال کریں۔ یاد رکھیے گا اس جملے کی طرف، شاید یہ وومنس ڈے کا بہترین جملہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، آنسوں پونچھنا کمال نہیں ہے، آنسوؤں کا آنکھوں میں آنے نہ دینا کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو آنکھ میں آنسو آ گئے، رومال دے دو، ایک ٹیشو پیپر دے دو کہ آنسو پوچھ لو۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ انسان آنسو پوچھے۔ یہ کوشش کریں کہ کسی ماں بہن کی آنکھ میں ہماری طرف سے اشک یا آنسو آنے نہ پائے۔ اگر اس مرحلے میں ہم کامیاب ہو گئے، یقین مانیے ہم ایک رول ادا کر سکتے ہیں معاشرے کی ترقی اور معاشرے کو آگے لے جانے میں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اگر سب لوگ قیام کر سکتے ہیں احتراماً تو اچھا لگے گا۔ وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدأت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ۔ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ۔ وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله